Now, now, as per tradition, we'll be seeking the blessings of Goddess Saraswati before commencing. So it's time for the Saraswati Vandana. Anjali ma'am. We also have Dr. Sharad Kumar Vaishya sir with us, who was the judge for the third day of the speech competition. He is Associate Professor, Department of Economics. Sorry, I'm so sorry. Associate Professor and Head, Department of Physics, Netaji Subhash Chandra Bose, Government PG College, Aliganj, Lucknow. So, welcome, sir. Namaskar to everyone. Namaskar, sir. So now we have now Aditya will proceed with the program. I would like to invite our chief guest, Mr. Ajay Kumar Pandey, to announce the winners of the English and the Hindi competitions both. Welcome, sir. नमस्ते, लेकिन मेरे पास कोई नाम नहीं है। आप लोगों ने नाम नहीं भेजा है। Oh, we might have missed. आप शेयर करो आदित्य। Okay, ma'am. Anjali, ma'am, can we have the names of the winners on the screen, please? Okay. So please check your WhatsApp. Meanwhile, I'd also like to welcome Dr. Archana Shukla ma'am, who was the judge for the first day of the competition, and she is Deputy Director, Department of Education, Ministry of Higher Education, New Delhi. Welcome, ma'am. Thank you, Yamini. अभी आप लोग स्क्रीन पर शेयर कर दीजिए विनर्स के नाम, जिससे कि हमारे सम्मानित अतिथि उसका नाम अनाउंस कर सकें स्क्रीन देखकर। स्क्रीन शेयर करेंगे ना उसके साथ।
Sir, please announce the names of the winners. Sir, is it visible? नहीं, नाम तो नहीं आ रहा. So we are sharing the names of the winners on the screen. If you can see. स्क्रीन पर कोई नाम नहीं आया अभी तक. Yes, Aditya, no name is visible yet. I think it is visible. Yes, sir, it is visible. So I think you have. तो सा साइज pinned- बड़ा कर इसका बहुत छोटा दिख रहा है. Yeah, थोड़ा it's सा visible. मैक्स. हाँ ऐसा. Is it visible? Yes, yes. लेकिन उन लोगों को दिखाई दे रहा है. Hello. So please announce the winners. Sir, अभी visible है screen? नहीं. Sir, Now? शायद आपने पिन कर दिया है अपना वो स्क्रीन. स्क्रीन पिन. Sir, otherwise please check your WhatsApp. So we have sent the names on the WhatsApp as well. So please check your WhatsApp. हाँ, अब आया. Yes, sir. जी. रुकिए. Sir, please announce the names of both the first prize winners. सभी प्राइज विनर्स अनाउंस होने दो क्योंकि सारे नाम आ चुके हैं स्क्रीन पर. Yes, ma'am. Okay, ma'am. अच्छा, जो विजेता हिंदी में शिकागो व्याख्यान के संदर्भ में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है उसमें पहला स्थान शैलजा चौरसिया और दूसरा स्थान अंशिका द्विवेदी, तीसरा स्थान हरिशंकर जायसवाल जी का है और अंग्रेजी में जिन लोगों ने इस वक्तृता प्रतियोगिता में भाग लिया है उनमें पहला स्थान मिला है साक्षी श्रीवास्तव को, दूसरा आकांक्षा अग्रवाल को और तीसरा भानु प्रकाश जी को। सभी विजेताओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, sir. Heartiest congratulations to all the winners and also to the rest of the participants. The participants need not get disheartened as winning and losing is part of the competition, and what matters is that what life lessons you have learned from Swami Vivekananda's speech and what inspiration you have taken from his life. So if you have taken inspiration and learned some lessons, then that will definitely make you a winner in life, and that is what matters the most. So all the best, and I'd like to inform all our winners and participants that you will be receiving your respective certificates via mail within 3 days from now. So I hope by now both our first prize winners are ready. So I'd like to first invite Shailja Chaurasia, who is the winner of the Hindi speech competition, to please deliver her speech. Link.
And also Ashish Kumar Shukla sir is with us, so I'd welcome him. He's assistant professor at the Department of Statistics, Ramanujan College, University of Delhi. So welcome, sir. Thank you. So Shailja, are you ready? Yes, ma'am. Okay, so please deliver your speech. यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शैलजा चौरसिया बीएससी द्वितीय वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म महासभा में दिए गए प्रथम उद्बोधन को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के समस्त नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने इस संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने हृदय में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था, जिन्होंने उसी वर्ष आकर दक्षिण भारत में शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आपको एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचि नाम वैचित्र्या द्रजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणामेका गम्य त्वमसि पैसा मरणव इव। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से होकर जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उद्देश्य का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति इसकी घोषणा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजा में हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी भी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्गों द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनके विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं। ये इस पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये विभत्स दानवी ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब इनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी से होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले समस्त मानव जाति का पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। धन्यवाद। Very well spoken, Shailja. Now we are more confident on the judgment, and now I would like to invite the first position holder of the speech competition in English, Sakshi Srivastava, to deliver her speech. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you. So a very good evening to one and all present here. Myself Sakshi Srivastava.
I'm a student of MSc Statistics from Allahabad University. First of all, I want to thank all of you who is involved in this competition directly or indirectly. Thank you so much for giving this opportunity. And I'm going to start my speech in the memory of Swamiji. So, sisters and brothers of America, it fills my heart with joy, unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion who taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation who has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came in southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion who has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from the hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood and is every day repeated by millions of human beings. Ruchina Vachitra Driju Kutalana Patadisham Nidameko Gamme Satvamasi Payasamanvi Iv. As the different streams having their sources in the different places all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different path which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all tend to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Ye yatha ma prapidyante tansitha bhajamayam mama vartamanu vartante manushyaha part sarvashah. Whosoever comes to me, through whatsoever form I reach him, all men are struggling to the paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. Had it not been for these horrible demons, the human society would be far more advanced than it is now. But their time has come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in the honor of this convention is the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the pen or with the sword, and of all uncharitable feelings between the persons winning their ways to the same goal. Thank you. Wonderfully recited, Sakshi. Now we have Dr. Subhash Kumar Yadav with us. He's assistant professor, Department of Statistics, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. Sir, welcome. थैंक यू तो अभी तो हम ड्राइव कर रहे थे, इसलिए सॉरी कि जो है थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए। बहुत तेज रन किए लेकिन फिर भी जो है 10-5 मिनट लेट हो गए। तो सभी विजेताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई कि इस तरीके से स्वामी जी के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है स्वामी जी के विचारों से परिचित हो रहे हैं और ये जो इवेंट की गई है विश्व बंधु दिवस पर कम से कम लोग जान रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और उसकी अहमियत कितनी है, हमें कितनी को वैल्यू देना चाहिए जिसको विश्व वैल्यू देता है। और इसलिए जो है हमारे को उस पर भी सब लोगों को काम करना चाहिए और सभी लोगों को अगर इसको मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली देश भी बहुत मजबूत होगा। तो इसलिए ये सबसे आग्रह है हमारा कि जो है स्वामी जी के विचारों को पढ़ें, स्वामी जी को पढ़ें और जो पढ़ें उसको आत्मसात करें तो डेफिनेटली जो ऊर्जा उनके अंदर भरेगी स्वामी जी को एहसास करेंगे और क्या नाम है अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much, sir, for your wisdom. Now I would like to invite Professor Sheila Mishra ma'am to kindly say a few words. Sheila ma'am is the founder mentor of OSH, and this competition is her brainchild. So welcome ma'am. सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा अभी सुभाष ने बताया, अभी हम लोगों का पहले से शेड्यूल नहीं था। आज पीएचडी इंटरव्यू शेड्यूल हो गए यूनिवर्सिटी में, और मैं पूरे रास्ते ड्राइव करते समय आप लोगों के साथ ज्वाइन थी, और मैं अपने अतिथियों का उनसे पहले पहुंचकर इस मंच पर स्वागत नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज अपने बीच में श्री अजय कुमार पांडे जी को पाकर बहुत ही अभिभूत हूँ, जिनका जीवन स्वयं अपने आप में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करके सारी पीढ़ी को, जो हमारे चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे वो समकक्ष हो, उनको निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, हमारे इस शिकागो स्पीच के कंपटीशन के उपलक्ष्य में जो आज का आयोजन हुआ है उसमें हम आपको सुनने के लिए बहुत ही आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत कम समय में बहुत सरलता और सहजता के साथ हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है। हम आपके इस सुंदर से जेस्चर के लिए बहुत बहुत अनुग्रहित अनुभव करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत। आज हम अपने बीच में माननीय श्री शिवपूजन सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रांत संगठक हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी के विचारों को पूरे भारत में प्रसारित करके और युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित किया है। तो आपका भी आदरणीय हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये अवसर हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष पूरा किया है। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल का 50 वर्ष और लखनऊ विश्वविद्यालय का ये जो शताब्दी वर्ष है, इस पावन अवसर पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप दोनों ही विभूतियों को अपने पास साथ पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो माननीय अजय कुमार पांडे जी से जुड़ने का माध्यम बने, ऐसी हमारी माननीय प्रोफेसर विनोद सोलंकी जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर रही हैं, और उनका भी पूरा जीवन बच्चों के चरित्र निर्माण, युवाओं के अंदर जो राष्ट्र प्रेम है उसको प्रेरित करने के लिए समर्पित है। हम आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनमें से अरुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को हम देख पा रहे हैं, शोभिता टंडन जी को, और हम देख पा रहे हैं हमारे बीच में है साईं विश्वकर्मा जी हैं, और इसके साथ ही हमारे बीच में सुभाष यादव जी आपने देखा वो भी है, और उसके साथ ही अन्य कुछ लोग हमारे साथ इसलिए नहीं जुड़ पाए शायद क्योंकि हमारी लिंक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टेक्निकल कारणों से बदलनी पड़ी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो YouTube के माध्यम से या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुन पा रहे होंगे, भले ही वो इस लिंक में नहीं है। हम उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ ही इस शिकागो कंपटीशन में जिन लोगों ने शुरुआत से हमारा साथ दिया है, ऐसे निर्णायक मंडल जिन्होंने हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया है, उनमें से हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर शरद कुमार वैश्य जी हैं, डॉक्टर अर्चना शुक्ला हैं, डॉक्टर सुभाष कुमार यादव हैं, डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला हैं, डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर AP रघुवंशी जी हैं, और जिनको हम इसमें देख पा रहे हैं ऐसे प्रोफेसर गीता मेहरा जी हैं। तो इन सभी सम्मानित अतिथियों के प्रति, निर्णायक मंडल के प्रति भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को अपने बीच में पाकर हम गौरवान्वित हैं। तो आज सबसे महत्वपूर्ण वो प्रतिभागी भी हैं जिन्होंने इसमें प्रतिभाग करके
लॉकडाउन के इस समय में, जबकि बहुत सारी गतिविधियां कर पाना संभव नहीं है और विशेष करके हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कल सुबह परीक्षा देनी है एमएससी फाइनल की, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो उनके प्रति तो विशेष हृदय से आशीर्वाद है। और सभी प्रतिभागियों, आज के एंकर और ये जो कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने पूरी तरह से बड़ी अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर अंजलि सिंह, इन सभी का हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ओएसएच टीम जो निरंतर इस पावन कार्य को आगे बढ़ा रही है पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जिन सभी महानुभावों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और जो हमारे इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बना रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद। हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं श्री अजय पांडे सर से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। अजय पांडे सर। और मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि कौन कौन लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। मैम ने कहा कि अंतिम क्षणों में लिंक बदलना पड़ा और थोड़ी परेशानी हुई। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हमेशा चुनौतियां ही आई हैं और अंतिम क्षणों में इस तरह की बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद वह सन्यासी डिगा नहीं, विचलित नहीं हुआ। इसलिए अगर आज हम उनके नाम पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और थोड़ी सी अड़चन आई, तो ये हमारी परीक्षा है, हमारे सामने चुनौती है और हम सब उस पर विजय प्राप्त किए। तो विजय प्राप्त करने वाले पूरे इस टीम को मेरा पुनः एक बार नमस्कार। अभी मुझे नाम अनाउंस करना पड़ा, हिंदी संवर्ग में, अंग्रेजी संवर्ग में कौन कौन बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। हम लोग आदरणीय सुब्बाराव जी के शिविर में खेल खिलाते हैं, सामूहिक खेल। 2 पक्ष खेल में होता है, लेकिन हम नारा लगाते हैं खेल समापन के बाद, जीत गए भाई, जीत गए, खेलने वाले जीत गए। उसमें कोई हारता नहीं है, खेलने वाले जीतते हैं। और फिर दूसरा नारा होता है, ठीक रहे भाई, ठीक रहे, देखने वाले ठीक रहे। तो हारता कौन है? हार गए भाई, हार गए, आलस बैठे हार गए। जो आलसी हैं, घर बैठे हुए हैं, वो हारते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में जिस किसी ने भी भाग लिया वह जीत गया, वह विनर है। और इन सभी प्रतिभागियों को मेरे तरफ से नमस्कार है। बहुत अच्छा, सुंदर मैंने वो स्पीच देते हुए बच्चों को सुना। और विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी राजयोग है, कर्मयोग है, भक्ति योग है स्वामी जी का। तो उस तत्व दर्शन पर और उनके दर्शन पर न जाकर के मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक कैसे हमारे स्वामी जी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक पुत्र थे, क्योंकि वो एक मित्र भी थे, क्योंकि वो एक शिष्य भी थे, क्योंकि वो एक गुरु भी थे, सन्यासी भी थे, अध्यात्म के विग्रह भी थे, भारतीय संस्कृति के प्रतिमूर्ति भी थे और भारतीय सभ्यता और दर्शन के केंद्रीभूत शक्ति के रूप में थे। और जब कन्याकुमारी राग पर जाते हैं तो वो घनीभूत भारत के रूप में अपने आप को संबोधित करते हैं। यही घनीभूत भारत जाकर के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को भारत की आभा को बिखेरता है, चरित्र को बिखेरता है, इसकी संस्कृति को बिखेरता है, दर्शन को बिखेरता है, समभाव के संदेश को देता है, सहिष्णुता के संदेश
को देता है, लेकिन वह सन्यासी, युवा सन्यासी, 30 साल का युवा सन्यासी इस तरह से कैसे पूरे विश्व को अपने वाग्मिता के बल पर चमत्कृत कर देता है। कैसे? मुझे लगता है 1881 में जब ठाकुर से भेंट होती है और ठाकुर 1886 में अपना शरीर त्याग करके चले जाते हैं, इन 5 साल के बीच में ही शंका से श्रद्धा की ओर मोड़ा जाता है एक योग्य गुरु के द्वारा। अपने यहां भारतीय रीति रिवाज परंपराओं में 5 ज्योतियों की चर्चा की गई है और क्रमशः बढ़ते हुए वो क्रम में ज्योति की चर्चा है। चंद्र ज्योति, सूर्य ज्योति, अग्नि ज्योति, ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति। जो आत्म ज्योति को जला लेता है वह ब्रह्ममय बन जाता है, उसके सामने कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है। लेकिन इस आत्म ज्योति को जगाने वाला एक योग्य गुरु चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी को एक योग्य गुरु मिला। वो महासम्मेलन 11 सितंबर 1893 को विश्व पटल पर हुआ। उस तरह की महासम्मेलन तो स्वामी विवेकानंद के जीवन में कितनी बार हुआ। गुरु स्वयं एक महासम्मेलन थे। अगर भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें तांत्रिक साधना में दीक्षित किया, अगर तोतापुरी ने उन्हें अद्वैत साधना में दीक्षित किया, अगर गोविंद राय ने सूफी साधना में दीक्षित किया, शंभू चरण मलिक ने अगर ईसाई धर्म में दीक्षित किया, और सभी धर्मों के सार के रूप में अगर ठाकुर कहते हैं, सभी धर्मों के सार के रूप में ठाकुर अगर कहते हैं, एक संदेश देते हैं कि जिसे कृष्ण कहा जाता है वही शिव है, जो शिव है वही आद्या शक्ति है, जो आद्या शक्ति है वही ईशा है, जो ईशा है वही अल्लाह है। अरे अगर एक सरोवर है तो तमाम सारे घाट हैं। अगर हिंदू अपने घड़े में जल भरता है और मुसलमान मशक में पानी भरता है, ईसाई अगर उस घाट पर जाकर के वाटर भरता है, तो इसमें अंतर है क्या? उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ये तमाम सारे रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और इनके माध्यम से वो पानी भरता, वहां परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है। और यह संस्कार स्वामी जी को 18 वर्ष की अवस्था से ही मिलने लगता है। और यह केवल यहीं तक नहीं, काशीपुर में तो ये सारा प्रशिक्षण चला ही, वराहनगर में, और वराहनगर के बाद जब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश के भ्रमण काल में उनको भारतीय संस्कृति की यही विशिष्टता मिली, और इस विशिष्टता को ही जब स्वामी जी की मेधा शक्ति से, जब स्वामी जी की प्रज्ञा से, जब स्वामी जी की उस बुद्धि से, जब स्वामी जी के उस चरित्र से और स्वामी जी की आध्यात्मिक गहराई से जब लोग परिचित होते हैं, तो पारखी दृष्टि रखने वाले शंकर पांडुरंग पोरबंदर में जाकर कहते हैं, स्वामी जी यहाँ आप रह के क्या करेंगे? स्वामी जी हिंदू धर्म की व्याख्या करेंगे अगर पाश्चात्य जगत में जाकर के, तो उनको एक आलोक मिलेगा, उनको एक प्रकाश मिलेगा। और इस तरह से स्वामी जी तमाम सारी अदृश्य शक्तियों से प्रेरित होकर के, और जब शिकागो में पहुंचते हैं, शिकागो में पहुंचने के बाद तमाम सारी समस्याएं उसके पूर्व आती हैं। जैसे अभी अभी आई कि अंतिम क्षणों में हमको लिंक बदलना पड़ा। अरे तिथि व्यतीत हो चुकी थी, जब एक प्रतिनिधि के नाते हमको पंजीकरण कराना था, लेकिन प्रतिनिधि भी नहीं थे किसी संस्था के, और किसी तरह से वहां अगर व्यवस्था बनी प्रोफेसर J.H. राइट के माध्यम से,
तो आयोजक समिति का पता भी गायब हो गया। और किस तरह से ठिठुरती हुई रात में एक मालगाड़ी के डब्बे में रात्रि व्यतीत करना पड़ा। लेकिन वो सारा कुछ पूर्व निर्धारित था। अगर वो नहीं होता तो श्रीमती हेल से मुलाकात नहीं होती। और शिकागो में जाकर के कुछ नया तो नहीं कहा ना, वो हमारी भारतीय रीत रिवाज, परंपराओं और संस्कृति, दर्शन की ही बात तो वहां कही, लेकिन वो उनके लिए नया था। वो चमत्कार पैदा कर दिया, वो जादू पैदा कर दिया। उन लोगों को लगा कि अरे सब लोग अपने अपने धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक 30 साल का नौजवान हम सबकी बात कह रहा है। न इसमें हिंदू धर्म की बात है, न मुसलमान धर्म की बात है, न ईसाई धर्म की बात है, न जैन की बात है, न बौद्ध की बात है। ये तो सबकी बात है। सर्वधर्म मम भाव की बात कर रहा है। अगर सही में दुनिया को कल्याणकारी स्वरूप देना होगा तो यही व्यक्ति एक संदेश दे सकता है। और कमाल हो गया, 30 साल का नौजवान कमाल कर दिया। विश्व पटल पर के जाकर के, घनीभूत भारत जाकर के, भारतीय संस्कृति और दर्शन का विग्रह वहां जाकर के कमाल कर दिया। अखबारों ने छापना शुरू कर दिया कि उस प्रबुद्ध भारत में मिशनरी भेजना मूर्खता है। कितना दिव्य था वह व्यक्तित्व, कितना आकर्षक था वह व्यक्तित्व। ये संस्कार मिला था गुरु से। और यही नहीं, केवल विश्व मंच पर, धर्म संसद के उस मंच पर ही स्वामी की यह व्याख्यान होके रह गया। अगर ये रह गया होता तो अमेरिका में न्यू थॉट्स मूवमेंट के एक प्रमुख, मुझे बहुत अच्छा लगता है विलकॉक्स का वो कथन कि स्वामी ने कहा था कि मैं तुम्हारे धर्म विश्वास में परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूं। तुम प्रेस्बिटेरियन बनी रहो, तुम यूनिटेरियन बनी रहो, तुम मेथाडिस्ट बनी रहो। मैं तुम्हें सत्य में जीवन जीने के लिए सिखाने आया हूं। और यही नहीं रुकते हैं। जब वो व्याख्यान दे रहे हैं लंदन में, 2 साल अमेरिका में व्यतीत करने के बाद जब वो लंदन में पहुंचते हैं और एक व्याख्यान चल रहा है, व्याख्यान से सारे लोग प्रभावित हैं, लेकिन एक दार्शनिक अपने अंदाज में कहते हैं कि स्वामी जी आपने कौन सी नई बात कह दी, आपका भाषण तो बड़ा प्रभावकारी है, बड़ा सुंदर है, लेकिन आपने नई बात क्या कह दी। स्वामी ने कहा सत्य उतना ही पुराना है, सत्य उतना ही पुराना है जितना ये पर्वत है, सत्य उतना ही पुराना है जितना ये ब्रह्मांड है, सत्य उतना ही पुराना है जितना ये परम पिता परमेश्वर हैं। अगर उसी सत्य को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सका और तुम्हारे विचारों को उद्वेलित कर सका तो इसमें अनुचित कहां है। और फिर तालियां गड़गड़ा उठी स्वामी के इस वक्तृत्व पर। ऐसा स्वामी विवेकानंद हमारे युवाओं को कैसे प्रेरित करता है, उनके विचारों को पढ़ के, उनके जीवन यात्रा को पढ़ करके। और खासकर चूंकि विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, इसलिए मैं ऐसे जगह मुंह संवरण नहीं कर पाता हूं कि खासकर अपने हिंदी क्षेत्र में 3 भाषा फार्मूला अपनाया गया। और हमारे गुरुदेव आदरणीय सुब्बाराव जी कहते हैं कि अगर केरल में जाएंगे तो वो मलयालम बोलेंगे, हिंदी सीखेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे। इसी तरह से तमाम सारे प्रदेशों में है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा हिंदी, तृतीय भाषा हिंदी, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं। मजाक करते हैं। भाषा के प्रति, सीखने के प्रति क्या लगाव था, क्या समर्पण था, क्या निष्ठा थी। बचपन में एक अपने रिश्तेदार के साथ
सोते सोते उन्होंने संस्कृत का व्याकरण सीख लिया। और अभी हाई स्कूल में थे, बांग्ला तो अपनी भाषा थी ही। एक शिक्षक, वो कॉलेज का नाम बहुत अच्छा, जहां उन्होंने हाई स्कूल, मेट्रोपॉलिटन स्कूल में एक शिक्षक की विदाई के अवसर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए हुए थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए तो शिक्षकों ने तमाम सारे विद्यार्थियों से कहा बोलने के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो पाया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सामने बोलने के लिए। उस समय नरेंद्र नाथ दत्त थे। नरेंद्र नाथ दत्त ने जब बोलना शुरू किया, आधा घंटा क्या चमत्कारिक, आकर्षक और प्रभावकारी शैली में व्याख्यान दिया कि बाद में जब स्वामी विवेकानंद बन गए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहना पड़ा कि भारत में इनके जैसे वक्ता अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है। ये प्रेरणा देता है। हमारे बच्चे अभी जब पढ़ रहे थे भाषण स्वामी जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा यूनिवर्सिटी के बच्चों को वो सुन करके, और जिन्होंने भी प्रतिभाग किया था वो बहुत हार्दिक मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये साहस तो बच्चों में पैदा हुआ। ये स्वामी विवेकानंद जी से सीखने की बात है। रायपुर चले गए थे 2 साल के लिए, जब वहां से आए तो एंट्रेंस का एग्जाम था, मात्र 1 वर्ष किसी तरह से एडमिशन मिला, लेकिन क्या प्रतिभा थी, क्या मेधा थी, क्या ऊर्जा थी उस बालक में कि 1 साल के अंदर अपना कोर्स पूरा ही नहीं किया, डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी भी प्राप्त किया। और उनके स्कूल में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाला दूसरा कोई लड़का भी नहीं था। हमको उस रास्ते पर चलना है। शंकर पांडुरंग जब विदेश जाने की बात करते हैं तो फ्रेंच सीखने की भी बात करते हैं। सीखने की कितनी ललक थी, फ्रेंच सीख लिया। और क्या नहीं सीखा उन्होंने, पहलवानी भी करते थे। गोपाल, क्या नाम था उनका, नौ गोपाल मित्र, उनके व्यायामशाला में जाकर के लाठी चलाना, तलवार चलाना, सब कुछ सीखा उन्होंने। तैरना उनको आता था, संगीत में वो प्रवीण थे। सीखने की क्या लालसा थी कि रामकृष्ण परमहंस जब समाधि में हो जाते थे तो उनकी समाधि में स्थिति को जानने के लिए उन्होंने चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। बीए करते करते उन्होंने अटॉर्नी निमाई चरण से व्यवहारिक कानून की जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। और किन परिस्थितियों में शुरू की, किन परिस्थितियों में? 1884 में पिता की मृत्यु के बाद एक प्रख्यात वकील थे, व्यापारी भी थे, बादशाहत खर्च थी और प्रतिष्ठा के सूचक सभी कुछ था। लेकिन पिता के मरने के बाद वो स्थिति आई कि उनके मकान पर अपने लोगों ने कब्जा कर लिया, खाने को मुहताज हो गए। और ऐसी परिस्थिति में भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है वही नरेंद्र आगे चल के स्वामी विवेकानंद बनता है। स्वामी विवेकानंद बनता है क्योंकि उसको एक गुरु मिल गया था। कहा जाता है ना, बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महनीय कार्य नहीं कर सकता है, और गुरु के अधीन हुए बिना बिखरी हुई शक्तियां केंद्रीभूत हो नहीं सकती। बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किया था रामकृष्ण परमहंस ने, और इसलिए वह मेधा, वह प्रतिभा तैयार हुआ था। स्वामी विवेकानंद के रूप में बाद में वो प्रख्यात हुआ। जब स्वामी विवेकानंद को अपने मरने के 1 दिन पहले ठाकुर सारी आध्यात्मिक शक्तियां उड़ेल देते हैं तो स्वामी परमहंस ठाकुर ये नहीं कहते हैं कि तुम इससे देश के कल्याण की बात करना,
तीर्णता ही जीवन है, संकीर्णता मृत्यु। ये तो गुरु ने सिखा दिया था। गुरु कहता है ये इन शक्तियों को देख करके मैं फकीर हो गया रे नरेन, लेकिन इन शक्तियों से तुम समाज का नहीं संसार का कल्याण करोगे, और जिस दिन अपने काम को कर लोगे उस दिन तुम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। उसके पहले वो सिद्धियां देने की बात कर रहे थे, जो उनकी अर्जित सिद्धियां थी। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, उस समय तो नरेन थे, नरेन पूछते हैं कि इन सिद्धियों को लेकर के क्या मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं? बोले नहीं, लक्ष्य देवो भव, ये विद्यार्थियों को सामने रखना चाहिए। लक्ष्य देवो भव, लक्ष्य ही देवता होता है। इसलिए कहा कि मेरे लक्ष्य में अगर ये सिद्धियां बाधक हैं तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले ईश्वर और ईश्वर की उपलब्धि प्राप्त करना है। कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, लेकिन इन मुश्किलातों को पार करते हुए जो आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही स्वामी विवेकानंद पैदा होता है। यदि तोर डाक सुने के ना से तब एकला चलो रे, यदि गहन पथे जाबार काले तो ये रक्त माँ का चरण तले तबे एकला चलो रे। अकेले तमाम विरोध भी हुए, तमाम परेशानियां भी पैदा की गई, तमाम उनके रास्ते में अंधेरों का साम्राज्य भी आया, अपने लोगों ने भी दूर हटने की कोशिश की, लेकिन कभी भी वह दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न स्वामी विवेकानंद अपने पथ से विचलित नहीं हुए, डिगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहे। चरई बेटी चरई बेटी चरई बेटी, और सफलता ने चरण चूमा। जो चाहते थे वह करके दिखाए, क्योंकि उनकी एक अभिलाषा थी कि अगर भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता को पाश्चात्य जगत स्वीकार कर लेता है तो उनका तो भला होगा ही होगा। उसके कारण हमारे देशवासियों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी, और वो चाहते थे कि हमारे हीन भावना से ग्रसित जो देशवासी हैं उनमें आत्मविश्वास जागृत हो। आत्मविश्वास जागृत करने के लिए ही उनका पल पल समर्पित था। वो सेना नायक हो सकते थे, वो बड़े प्रख्यात वकील बन सकते थे अपने पिता के व्यवसाय में जाकर के, वो बड़े वक्ता और समाज सुधारक बन सकते थे, लेकिन उनका पल पल तो गरीबों के हित के लिए समर्पित था। क्योंकि वो तो कहा करते थे कि अगर गरीबों का जो भला करता है वही महात्मा है, अन्यथा वो दुरात्मा है। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक जन्म नहीं 1000 जन्म लेने के लिए वो तैयार थे। अगर नरक में भी जाना पड़े गरीबों की भलाई करते करते तो उसके लिए भी वो तैयार थे। सांप्रदायिक सद्भाव की बात, धार्मिक सहिष्णुता की बात केवल उस मंच से ही नहीं किया स्वामी ने। स्वामी जब बेलूर मठ में आते हैं और अपने एक गृही शिष्य से कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयास करने के लिए, और उनके द्वारा जब कठिनाइयां बताई जाती हैं, उनके द्वारा जब परेशानियां बताई जाती हैं, तो स्वामी कहते हैं कि फिर तुम मेरे पास मत आना, फिर तुम मेरे पास नहीं आना। मैं गढ़ कर जोड़ना चाहता हूं, जो है उसे तोड़ने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा था व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी का, जो हमारे आज के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जितना ही हम पढ़ेंगे उतने ही गहरे हम उनको पाएंगे, उतने ही हिमालय से भी ऊंचा पाएंगे, प्रशांत महासागर से भी गहरा पाएंगे। चांद की शीतलता है तो सूर्य की प्रखरता भी उस व्यक्ति में थी। वो विरुद्धों का सामंजस्य था। अगर 1902 में 21 फरवरी को 1902 में
बनारस, चूंकि मैं बनारस का हूं, वो बनारस आए हुए थे। ये संवेदना का विस्तार देखिए। जिस व्यक्ति को पूरे विश्व की चिंता है, जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कृति, दर्शन और सभ्यता को प्रचारित प्रसारित करना है, जिसको सर्वधर्म समभाव का वातावरण विकसित करना है, जो संसार के कल्याण के लिए अपने आप के पल पल को समर्पित कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या चिंता है? स्वामी ब्रह्मानंद जी को पत्र लिखते हैं बनारस से कि मेरी बकरी का ख्याल रखना यार, मेरी बकरी का ख्याल रखना। वाह, क्या स्वामी की संवेदना है, क्या विस्तार है। केवल मानव नहीं, मानवेतर प्राणियों से क्या लगाव है। अपनी बकरी से भी दूध लेना है, चाय के लिए तो इजाजत मांगता है वो स्वामी। धन्य है वो स्वामी, हम सबके लिए प्रेरणा है वो स्वामी, हम सबके लिए ऊर्जा का शक्ति है वो स्वामी। अदम्य शक्ति, अदम्य ऊर्जा, अदम्य साहस, अदम्य निर्भीकता का विग्रह स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक के व्याख्यान के उपलक्ष्य में जो आयोजन किया गया, आयोजन समिति को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। एक सुंदर काम आपने किया, शुरू कर दिया है और हमारे विश्वविद्यालय के छात्र इसमें रुचि ले रहे हैं, ये बड़ी बात है। चूंकि मैंने पहले भी बताया, आज 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं हमारे आदरणीय, हमारे प्रिय, हमारे श्रद्धेय, हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी द्वारा स्थापित उनके आश्रम महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा, जहां 1972 और 76 में 654 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है। अगला कार्यक्रम उधर होना है, इसलिए मैं अपने वाणी को न चाह के भी विराम दे रहा हूं। वैसे समय तो मैंने ज्यादा लिया, आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए, और प्रोफेसर शीला मिश्रा जी, हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर विनोद सोलंकी जी, जो शायद देख रही हैं, जैसा कि मैडम ने कहा, तो आप सबको, आप सभी सुधी श्रोताओं को फिर एक बार नमन, एक बार प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं उन बच्चों को जिन्होंने वक्तृता प्रतियोगिता में भाग लिया था। बार बार नमन, बार बार शुभकामनाएं, आप सबको आभार। Thank you very much, sir, for motivating and energizing us with your words, giving us detailed insight into the Chicago speech and Swami Vivekananda's incredible personality. Now I would like to invite our guest of honor, Mr. Shiv Pujan Singh sir. He is प्रांत संगठक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी उत्तर प्रदेश, for his words of wisdom and enlightening us. Welcome sir. जी प्रणाम सभी को। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही? Yes sir. यस। अभी इस कार्यक्रम के निमित्त मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। आदरणीय अजय पांडे जी, डॉक्टर विनोद सोलंकी, प्रोफेसर विनोद सोलंकी मैडम, शीला दीदी और एसपी त्रिपाठी जी, अरुणेंद्र जी और अन्य सभी कार्यकर्ता तथा जो इस कार्यक्रम में भाग रहे हैं सभी सहयोगी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। समय तो वैसे हो गया है, मैं केवल संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि 6 तो बज ही गया है, 6:01 हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो समय दिया है वो अभी पर्याप्त नहीं है। तो जिस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हुआ है और जो विद्यार्थियों ने जो अपना भाषण प्रस्तुत किया है, उन सभी विद्यार्थियों को, विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। विश्व बंधुत्व की भावना, स्वामी विवेकानंद का ये जो अवसर है, हम सभी भारत के लोग 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक का जो स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान है, उसको
हम सभी विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसा अभी अजय पांडे जी ने उल्लेख किया, स्वामी जी का व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनका संदेश, यह आप सभी युवाओं के लिए कि स्वामी जी को एक गुरु मिला, तो साक्षात जिसको ईश्वर दर्शन जिसने किए थे, ऐसा गुरु जिसने बोला कि तुम्हें माँ का काम करना है, तुम्हारा जीवन माँ के लिए है। यह संदेश स्वामी विवेकानंद ने को दिया ठाकुर ने, और इसी माँ के काम के लिए वह बारानगर से निकले और पूरे भारत भ्रमण करने के पश्चात अंतिम कन्याकुमारी पहुंचे। गरीबी देखी भारत की, अज्ञानता देखी और अस्पृश्यता भी देखी। इन सब बीचों बीच स्वामी विवेकानंद का मन बहुत ही विचलित था और स्वामी विवेकानंद देवी कन्याकुमारी मंदिर पर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, माँ से, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे मनुष्य बना दो। और इस बाद उन्होंने अपने मन में एक तरह से उनका मन उद्वेलित था, कैसे इस विषम परिस्थिति में अपने भारत के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए मैं क्या करूं, मेरी क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में चिंतन किया। और सामने उन्होंने शिला देखा जहां पर एकांत था, और वो कूद करके उस स्थान पर गए और स्वामी जी ने वहां पर 3 दिन 3 रात तक ध्यान किया। और इसके पश्चात उन्होंने वहां बताया कि शिला में बैठ करके मुझे जीवन का मूल सूत्र प्राप्त हुआ, तो मुझे जीवन में करना क्या है। और यहाँ के बाद वो अमेरिका जाते हैं, शिकागो में उनका व्याख्यान, सभी लोग जैसे अभिभाषण का यहाँ प्रस्तुति हुई है, तो मैं उसको दोहराते हुए नहीं करूंगा, मगर कुछ चीजें हैं जो स्वामी जी के जीवन और संदेश से हमको सीखना है। स्वामी जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। हम सभी युवाओं के अंदर वह अव्यक्त ब्रह्म है, देवत्व है। उस देवत्व को प्रकट करना ही जीवन का उद्देश्य है। वह देवत्व कैसे प्रकट होगा, जितना वह अपने अंदर जो व्यक्तित्व है उसको बाहर निखारेंगे, दूसरे के लिए काम करेंगे, अपने कार्यों में राष्ट्र, समाज, परिवार और पूरी सृष्टि जब रहेगी तभी हम उस देवत्व को प्रकट कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहता है, विश्व बंधुत्व केवल मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म बहुत ही वो है, ऐसे तो नहीं होगा। हम ऐसी संस्कृति के पुरोधा हैं कि हर एक जीव में ईश्वर निवास करता है, ऐसा हमारा मत है। हमने किसी को अस्वीकार नहीं किया, हमने सब कुछ स्वीकार किया है। एकम सत्य बहुधा बदलती, ऐसा विश्व में दिया है कि सत्य को लोग अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं, उसको प्रस्तुति करते हैं। इसलिए उस सत्य को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। वो सत्य क्या है? वो सत्य है हमारे अंदर जो ईश्वरत्व बैठा है उसको प्रकट करना, जो दयालुता है, जो मानवता है, जो आत्मीयता है, उसको प्रकट करना ही जीवन का उद्देश्य है। हम अपने चेतना को इतना विस्तार करेंगे, छोटी सी जीव से लेकर के बड़ा पर्वत तक हम उसी ईश्वर का दर्शन करते हैं। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना तभी प्रकट होगी जब हम हर एक के अंदर ईश्वर का दर्शन करेंगे, आत्मीयता का अनुभव करेंगे कि यह पराया नहीं है, मेरा ही एक अंश है, मेरा ही एक भाई है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जब पूरे पश्चिम का प्राप्त करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद जब भारत में पहुंचते हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गर्व से कहो, अज्ञानी मूर्ख मेरा जो भाई है। अपने देश बहुत प्रेम था स्वामी विवेकानंद को, यहाँ की मिट्टी को बहुत मानते थे। इसलिए रामेश्वरम में जब उनको लेने के लिए रामनाथ के राजा आए थे तो यहाँ की मिट्टी को उन्होंने शरीर पर लगाया कि यहाँ की मिट्टी बहुत पवित्र है, मेरे कलुषित विचार इस पवित्र मिट्टी से धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, ऐसा उनका प्रेम। और उन्होंने कहा आगामी 50 साल के लिए केवल एक ही देवता आपकी आराध्य हो और वो है भारत माता। भारत माता की सब जगह पैर है, सब जगह हाथ है, सब जगह है। उस विराट का दर्शन करो, उसकी पूजा करो और 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साइड करके अपने केवल आराध्य भारत माता की पूजा करो। यह स्वामी जी का आह्वान युवाओं के नाम का था। इसलिए उनका आह्वान सुन करके
तत्कालीन जो युवा लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और देश की आजादी के लिए जुट पड़े। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो आज का जो भाषण आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम जो किया है, मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है, मुझे भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करके सभी विजेताओं को पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं, और जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद के विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो this brings us to the end of today's program, to the end of OSH's first monthly session, the Swami Vivekanand Chicago Speech Recitation Competition. It's been quite an eventful week for us, and we have learned a lot during this entire week from all the participants, all the guests of honors, all the judges. So thanks a lot to everyone. Now, to officially close the program, I'd like to invite Dr. Anjali Singh ma'am to deliver the vote of thanks. Anjali ma'am. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good evening, everyone. It is my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. I, Anjali, on behalf of entire OSH team, extend a very hearty vote of thanks to our chief guest, Shri Ajay Pandey sir, and guest of honor, Shri Shivapujan Singh sir, who spare time from their busiest schedule to grace this occasion. Thank you, sir, for motivating us. We conduct this event for 3 days, and for all 3 days, we have 3 judges. For the first day, we have Dr. Pratibha Shukla ma'am, Dr. Subhash Kumar Yadav sir, Dr. Ashna Shukla ma'am. For the second day, we have Professor Geeta Mehra ma'am, Dr. Purnima Singh ma'am, Dr. Ashish Kumar Shukla sir, and for third day, we have Dr. Sharad Vyas sir, Manjula Upadhyay ma'am, and Dr. A.P. Raghuvanshi sir. So I would like to express my gratitude to the judges of the speech competition. With the help of them, we have successfully conducted this event. I personally want to thank Sheila ma'am for giving me opportunity to coordinate this event. Thank you so much, ma'am. I would like to thank our participants for their participation in our 3 days event on Vivekananda's Chicago speech. Thank you, for their effort toward today's anchoring. They make their event great. Thank you, ma'am. Thank you, Anjali. Before we end, हम जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी हार्दिक बधाइयां देना चाहेंगे। माननीय सुब्बा राव जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उसका भी 50 वर्ष पूरा हो रहा है, और वो 6:30 बजे से कार्यक्रम है, उसकी लिंक आप सब लोगों को हम शेयर कर लेंगे। तो जो लोग उस कार्यक्रम में सहभागी होना चाहें वो उसमें हो सकते हैं, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो हम अपने मुख्य अतिथि महोदय, गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारे माननीय प्रांत संगठक जी थे, उनका, और सभी जजेस और सभी प्रतिभागियों, सभी गेस्ट्स, जितने महानुभाव हमारे साथ जुड़े, और विवेकानंद केंद्र के जितने पदाधिकारी कार्यकर्तागण हमारे साथ जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाए, उन सबको भी व्यक्तिगत रूप से हार्दिक धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और अब हम अपने कार्यक्रम को क्लोज करने के लिए, संपन्न करने के लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हमारे आज के एंकर्स अनाउंस करेंगे। Thank you all for joining us today. It's been a great week for us. All the 3 days we had the competitions, and today was the concluding day. So we had a great event, and thanks for joining us. I hope you all have a great day. Aditya, do you want to add something? Thank you, everyone, and good evening. Now we shall officially close this meeting. Thank you all. Thank you, and congratulations to Yamini and Aditya. बहुत अच्छा, well done. Your program is well anchored, and congratulations to Anjali also, जिसने last time पे बहुत ही difficulty आने के बाद भी इसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया, और हमारे सभी advisors, सभी committee members
ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम को पूरा वीक चलाया है और इतने सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन वन एंड ऑल। थैंक यू। Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, This ma'am. means a lot.